Hi students, good afternoon. Let's wait for 2 minutes. Okay, कौन कौन ज्वाइन हो गया है? मैसेज मी. ग्रीष्मा, पीयूष, मितेश, मानसी, कृपा, संजू, त्विषा, रोहित, हर्षिता, पीयूष, अमना. वेरी गुड. स्वालिया आ रहे जस्ट अभी मैंने लिंक सेंड किया है, सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स. रेहान, ओके. आदिति, रुगजा, ओके. मीनवाइल जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो. अदनान, ओके. तनिष्का, आदिति, okay. Tanishka, you are from which school? Tanishka, Saint Teresa, okay. Amna, I know you. Okay, Tanisha is also from Saint Teresa. Okay. Varsha, hi Varsha, how are you? I am fine. Very good. So we are going to start now. Meenakshi, hi Meenakshi. So we are going to start now. So let's आ रहे join हो रहे हैं, join होने दो. We'll start our session. So those who have attempted first time, तो इसमें कुछ नाम मुझे आज नए भी दिख रहे हैं. So we'll start. Today we are going to see the parts of speech. Okay. Now it's very easy topic. Okay. हम लोग को लग रहा है हम लोग को ये सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिए हैं. आज थोड़ा अलग कुछ करने वाले हैं. ओके. आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं. कंपैरेटिव में स्टडी में क्या करने वाले? वी आर गोइंग टू सी. गुड आफ्टरनून दिव्या. वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी. तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे. तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे.
ओके, सो वी नो दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस इज इंग्लिश वर्ड, उसका कंपैरेटिव हिंदी वर्ड देखेंगे, उसका मराठी वर्ड भी देखेंगे. ओके, सो दिस इज द इंग्लिश वर्ड. ओके, एंड विच इज द मराठी वर्ड फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच? Okay, this is the English word for parts of speech. And what is the Marathi word? Do you know Marathi word for parts of speech? Yes, no. If you know the answers, send me the answers. Anyone knows? Hurry up. No one knows. शब्दांच्या what? शब्दांच्या जाती. Very good, Swalya. It's शब्दांच्या जाती. It's in Marathi. Okay. English हो गया, Marathi हो गया. Now we'll see the Hindi word. Which is the Hindi word for this parts of speech? Can anyone tell? Hindi word for parts of speech. Anyone knows? Shabdabhed. Very good. It's शब्दभेद. ओके, सो शब्द की जाति नहीं मीनाक्षी, इट्स शब्दभेद. ओके, तो शब्दभेद में क्या होता है? लेट्स सी. पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दभेद में और शब्दांच्या जाति में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली उसके प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, उसकी स्पेलिंग का डिफरेंस है, उसके नाम का डिफरेंस है. ओके, सो बेसिकली द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेट रोहित, यू कॉन्सेंट्रेट. So parts of speech is basically divided into two types. Okay, which are the two types? Do you know which are the two types of parts of speech? Tell me two types of parts of speech in English. Do you know? Yes, no. Anyone knows? Okay. Can you tell me Shabdancha Jati in two types? Which are the two types for Shabdancha Jati in Marathi? Anyone knows? Yes, no. Vikari and avikari. Very good. Okay, so vikari shabda, avikari shabda. Now for Hindi and Marathi, here I am writing you Marathi words, here I am writing Hindi words, and this is our English. Okay, so in English the parts of speech are of two types, that is they, the, labels. They, the, labels. Okay, they, the, labels. And next one is in desi labels. In desi labels. Okay, so in English the parts of speech are of two types, daddy labels and in desi labels. Okay, have you understood? These are the two parts of speech in English. In Marathi, you'll have Vikari Shabda and Avikari Shabda. Okay? Now Vikari and Avikari.
or it is also called as savyay or an avyay. Okay, and same you have in Hindi also, savyay and avyay. Okay, have you understood? You copy down this, then we'll make 3 different columns for everything. Okay, so first you have to understood the parts of speech has been divided into 2 types. In English, they are called as a decinables and indecinables. Okay, in English the parts of speech are decinables and indecinables, while in Marathi and Hindi it is Vikari Shabda and Avikari Shabda. It is a basically Marathi word. And for Hindi you can use Savyay and Avyay. Okay? Have you got the difference? Have you copied this? Then I'll make columns. You copy down this. Okay, हो गया कॉपी करके. Now next we are moving towards the next part. Now we will make 3 different columns for it. Now can you tell me how many parts of speech are there? How many parts of speech are there? How many parts of speech are there? Yes, it's 8 parts of speech. Okay, so each is divided into 2 parts. So सव्यय में 4 रहेगा, अव्यय में 4 रहेगा, और decinables 4 टाइप्स के हैं and indecinables 4 टाइप्स के हैं. Okay. Now make 4 columns. Make 4 columns. In first column you write down English. Then write down Marathi. Then write down Hindi. Okay. So first we'll see decinables, which is called as Vikari Shabda or Savyay. Okay. So there are 4 types of decinables in English, Hindi and Marathi. Okay. So copy down this. First one is noun, pronoun, adjective. Fourth one is verb. Okay, these are the 4 decinables present in parts of speech. तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, हम लोग उसको अभी मराठी में लिखेंगे. मराठी में नाउन को क्या कहते हैं? कहते हैं नाउन. प्रोनाउन को क्या कहते हैं? इट इज सर्वनाउन. थर्ड आता है एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? इट इज विशेषण. एंड फोर्थ वन वर्ब को क्या कहते हैं? इट इज क्रियापद. ओके. नाउन को इंग्लिश में देयर आर 4 decinables. फर्स्ट वन इज अ नाउन, pronoun, adjective and verb. So what is the comparative name for Marathi? In Marathi the noun is called as noun, pronoun is called as sarvanaam, adjective is called as visheshan, verb is called as kriyapad. Okay, now we'll move towards the Hindi part. So in Hindi the noun is called as sagya. Sarvanaam as it is sarvanaam. Visheshan
It's विशेषण. Fourth one, क्रियापद is called kriya. Okay, so we are finished. We have means writing part is finished for 4 parts. That is somewhere. Now we'll see what is संज्ञा. Do you know noun? What is noun? What is noun? Noun, pronoun, adjective and verb. Okay, these are the 4 different terms we are going to see. Okay, name. So name of a person, thing or place is called as a noun. Okay, name of person, thing or place is called as noun. Okay, have you got the noun? Okay, now I am going to tell you one example. You have to tell me where is the noun. Okay, so Dinesh went to school. Dinesh went to school. So which is the noun here? Dinesh went to school. Which is the noun here? Dinesh, very good. Rugaja, Salya, Varsha. Only one noun is there? Yes. One more noun is there. Which is another name? Another noun? School. Okay. So here in this sentence we are having 2 nouns. That is Dinesh and school. Understood? The name of a person, place or thing is called as noun. Mitesh, very good. Okay. Which is another name? Another noun, Mitesh. Waiting for Mitesh. School, very good. Okay, have you got the difference? Now next we are moving towards the pronoun. So what is pronoun? The word which we are using instead of noun. The word which we are using instead of noun. Noun के बदले जो word use होता है that is called pronoun. Okay, so pronoun में क्या आता है? He, examples, he, she, it, they, we, you, etc. These are the few examples. Okay, now I'll give you one example. Sita went to market, full stop. She likes to buy an ice cream. Sita went to market, full stop. She likes to buy an ice cream. So where is the pronoun here? Yes, Kripa, very good. Rugaja, Grishma, Varsha, very good. Okay, understood pronoun? Next we are moving towards the adjective. So what is adjective? The word which describes the noun. जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, that word is called as adjective. Okay, so I am giving you one example. Sita went to market, full stop. She likes yellow color flowers. Sita went to market, full stop. She likes yellow color flowers. So which is adjective here? No, Divya, wrong. Which is adjective here? Yellow. Very good. वो मार्केट गई, उसके कौन से कलर के फ्लावर्स अच्छे लगे? येलो कलर के. फ्लावर्स इज अ नाउन. फ्लावर नाउन है, उसके पहले जो वर्ड आता है वो जनरली क्या करता है? जनरली द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन. ओके, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्ब पार्ट. ओके, इट्स an action word.
एक्शन कैसे हो रही है बता रहा है, therefore verb is an action word. Okay, so she drinks water. She drinks water. So where is the verb? Where is the verb? Drinks. Very good. Okay. Now ये हम लोग ने इंग्लिश में देखा, इसलिए हम लोग फटाफट आंसर्स दिए. Now we are moving towards the Marathi part. Okay. Same thing. Noun is called as noun. Pronoun is called as sarvanaam. Adjective is called as visheshan. And verb is called as kriyapad. Okay. Now we'll see the first part. Noun. Noun. अभी मितेश तू आंसर देगा. ओके, मराठी में. सीता ने पुस्तक वाचले. ओके, सीता ने पुस्तक वाचले. वाचले मतलब उसने बुक पढ़ा. ओके, तो सीता ने पुस्तक वाचले. तो यहाँ नाउन किधर है? वेयर इज अ नाउन? कुठे नाम आहे? नो रोहित. नाम सीता. और क्या नाम है? और कोई नाम है? एनी नेम? अमना? यस वर्षा. वेरी गुड. सीता, नॉट आनी. वर्षा रॉन्ग है. तनिष्का, हाँ राइट. सीता और पुस्तक ये नाम है. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सीता एंड पुस्तक. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सीता ने पुस्तक वाचले. इसमें हम लोग ने क्या देखा था? इसमें देखा नाउन. नेक्स्ट विल सी द प्रोनाउन. सीता बाजारात गेली. फुल स्टॉप. तिने तिच्या आईसाठी भाजी घेतली. सीता बाजारात गेली. तिने तिच्या आईसाठी भाजी घेतली. अभी इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोनाउन. व्हाट आई टोल्ड यू, प्रोनाउन मींस व्हाट? सर्वनाम. सर्वनाम क्या करता है? द वर्ड व्हिच वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ नाउन. जो नाउन के बदले में वर्ड यूज होता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज अ प्रोनाउन. तो यहाँ मराठी में कहाँ आपको प्रोनाउन दिख रहा है? टेल मी द आंसर्स. दिव्या, you told only one. Maybe here you'll have more pronouns instead of one noun. Tine, tine is right. Yes. Any pronoun? I is not pronoun. Swalaya. Ticha. Very good. Okay. So tine, ticha. तीने और तीचा ये दो क्या हो जाएंगे? ये दो हो जाएंगे सर्वनाम. द वर्ड विच वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ नाउन. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम लोग ने देखा नाउन, हम लोग ने देखा प्रोनाउन. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ब. पहले वर्ब लेते हैं. ओके, वर्ब इज व्हाट? इट्स अ एक्शन. इट्स एन एक्शन वर्ड. एक्शन कैसे हुई है? या एंड ऑफ द, इन मराठी एंड हिंदी इट इज वेरी बेसिकली it comes at the end of the sentence. Okay, so here can you tell me where is a verb in this the same sentence? सीता बाजारात गेली. तिने तिच्या आईसाठी भाजी घेतली. So can you tell me where is a verb here? क्रियापद. इथे क्रियापद कुठे आहे सांगू शकता? तिने नाही. आदिती, घेतली. yes. एक्शन वर्ड उसने क्या लिया? उसने सब्जी ली है. ओके, सो घेतली इज क्रियापद. ओनली वन क्रियापद. यस वर्षा. गेली इज अनदर क्रियापद. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, तो ये सेंटेंस है, फुल स्टॉप है. यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है. उसके पहले जो वर्ड है जनरली, ओके, इन मराठी एंड हिंदी लास्ट वर्ड जनरली वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है. सीता बाजारात गेली है, उसके एक्शन है, वो बाजार में गई, तो ये क्रियापद है. और सेकेंड सेंटेंस में घेतली, इट इज अ लास्ट वर्ड घेतली, वो सेकेंड क्रियापद है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये हो गया हम लोग ने पढ़ा नाउन.
pronoun or verb. Now we will move towards the adjective. Okay. सीता ने ताजी भाजी घेतली. सीता ने ताजी भाजी घेतली. ओके, तो इसमें एडजेक्टिव कहाँ है? एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन. नाउन के पहले जो वर्ड आता है जनरली उसको कहते हैं एडजेक्टिव. वेरी गुड. ताजी भाजी नाउन है, उसके पहले जो वर्ड आया दैट इज ताजी. इट्स अ एडजेक्टिव. Have you understood? Have you understood all? Yes, no? So, English हो गया, मराठी हो गया. Next we are moving towards the Hindi part. Okay? Now in Hindi I'll write down only one sentence. और वो one sentence में you have to find out नाम के लिए हिंदी में क्या वर्ड है? संज्ञा. ओके, सो वही वन सेंटेंस में यू हैव टू फाइंड आउट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया. ओके, ओके, दिस इज अ सेंटेंस. राम पाठशाला गया, उसने कच्चा आम खाया. ओके, तो इसमें यू हैव टू फाइंड आउट संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. चलो फाइंड आउट ऑल फोर टाइप्स: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया. फाइंड आउट. ओके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. आई वांट ऑल फोर आंसर्स. हिंदी ग्रीष्मा. नाम, सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया. ओके, फर्स्ट गिव मी आंसर ऑफ संज्ञा. संज्ञा कौन सी है? संज्ञा कौन सी है इसमें? I want संज्ञा. राम. वेरी गुड. खाली एक ही है, एक ही संज्ञा है. और राम. वेरी गुड. राम तो हो गया. देन पाठशाला. ओके, वेरी गुड. और गुड आफ्टरनून शालिक. लेट आया तू बहुत. ओके, आम. वेरी गुड. ओके, सो हियर वी आर हैविंग थ्री संज्ञास. एक है राम, पाठशाला और आम. तीन संज्ञा मिले. संज्ञा को मराठी में क्या कहते हैं? मराठी में क्या कहते हैं संज्ञा को? मितेश, संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम. वेरी गुड. ओके, नाम संज्ञा हो गया. सर्वनाम पहचानो. ये सेंटेंस में सर्वनाम कहाँ है? पहचानो सर्वनाम. यस यस यस, वेरी गुड. उसने. राम पाठशाला गया, उसने कच्चा आम खाया. किसने? राम ने. सो वर्ड विच वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन के बदले में हम लोग ने क्या वर्ड यूज किया? राम के बदले में कौन सा वर्ड यूज किया? उसने. तो उसने हो गया सर्वनाम. वेरी गुड. नाउ टेल मी विशेषण. यस, हाँ, वेरी गुड. कच्चा. इट्स अ विशेषण.
next, very good. Next we are moving towards the next part, that is kriya. Where is a kriya over here? Where is kriya? Or kriya, कच्चा is not kriya. Yes, खाया और सॉरी गया और खाया, ये उसकी दो क्रिया है. Okay, have you understood the difference? Yes, no? Now we are moving towards the next part. ये हो गए विकारी शब्द. अभी देखते हैं अविकारी शब्द और अव्यय. अविकारी शब्द और अव्यय. ओके, तो इसमें नंबर्स आएंगे. इसमें 1 2 3 4 5. ओके, सो इंग्लिश में आएगा फर्स्ट आएगा, क्या लूं? कुछ याद आ रहा है? तुम लोग नाम बता दो, वही लेती हूँ. अरे नाम कुछ याद? एडवर्ब. चलो एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं. और कुछ याद आ रहा है? एडवर्ब हो गया. और कुछ याद आ रहा है? एनी अदर? एडवर्ब हो गया आदिति. प्रेपोजिशन. एनीथिंग एल्स? प्रेपोजिशन हो गया. एनीथिंग एल्स? हरी अप. कंजंक्शन. वेरी गुड. नेक्स्ट. नो. ग्रीष्मा. यस. इंटरजेक्शन. ओके, यस. अब इसके कंपैरेटिव मराठी वर्ड देखते हैं. एडवर्ब को क्या बोलते हैं? एडवर्ब को क्या बोलते हैं मराठी में? डू यू नो? यस, नो? यस, क्रिया विशेषण. वेरी गुड. प्रेपोजिशन को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन. यस, शब्द योग्य अव्यय. अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय. ओके, कंजंक्शन को कंजंक्शन. नो उद्गारार्थी नहीं. उभयान्वयी. वेरी गुड. उभयान्वयी अव्यय. नेक्स्ट. नेक्स्ट. इंटरजेक्शन को हरी अप. इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? केवल प्रयोगी अव्यय. वेरी गुड. ओके, सो हिंदी में बता सकते हैं? यस दिव्या.
हिंदी में बता सकते हैं? चलो विल स्टार्ट। हिंदी में क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? जल्दी। सेम वर्ड है, इट इज अ क्रिया विशेषण अव्यय। सेम, वेरी गुड। शब्द योगी को क्या कहते हैं? हाँ, शब्द योगी। नो सेम, नो सेम, नो शेक, खुशनुंदा शेक, नो। यस दिव्या, संबंध सूचक अव्यय। उभयान्वयी अव्यय को? उभयान्वयी, उभयान्वयी अव्यय को? एनीवन नोस? ओके आरती। उभयान्वयी अव्यय को? समुच्चय बोधक, वेरी गुड। और केवल प्रयोगी को? केवल प्रयोगी, केवल प्रयोगी को क्या कहते हैं? हरिया फटाफट। केवल प्रयोगी को क्या कहते हैं? डू यू नो? यस नो, यस नो। विस्मयावधि बोधक, वेरी गुड। Okay, so we have written 4 अविकारी शब्द. Okay, so in English it's adverb, preposition, conjunction and interjection. In मराठी क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय. In Hindi it's क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, and last one is a विस्मयादि बोधक अव्यय. Okay, now we'll see first is adverb. In English first we'll see. ओके, तो इंग्लिश में जाने से पहले हम लोग मराठी में देखते हैं. मराठी में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय. क्रिया विशेषण, क्रिया, उसको तोड़ेंगे तो 2 वर्ड हो जाएंगे, क्रिया और विशेषण. ओके, क्रिया मीन्स व्हाट? क्रिया मीन्स इन इंग्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिया इन इंग्लिश? Verb, very good. And what is the meaning of visheshan? What is the meaning of visheshan? Visheshan का meaning adjective, very good. Now adjective का ad लिया और ये verb लिया, so the word becomes adverb. Okay, तो अभी इसको देखेंगे. Adverb, एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. अभी ओनली एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा था? इट डिस्क्राइब्स द नाउन, बट एडवर्ब विल डिस्क्राइब्स द वर्ब. समझ में आया? मतलब जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एडवर्ब और क्रिया विशेषण अव्यय. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, एडवर्ब डिस्क्राइब्स द वर्ब्स. She walks slowly. Okay, first I'll write down the definition. The word which describes the verb. जो word verb को describe करता है, that verb is called as adverb. Okay, she walks slowly.
So where is the adverb here? She walks slowly. वो कैसे चल रही है? क्रिया दिखा रहा है, वर्ब दिखा रहा है, उसका एक्शन दिखा रहा है. एक्शन कैसे हो रहा है? स्लो हो रहा है. तो स्लोली इज अ एडवर्ब. वेरी गुड ग्रीष्मा. ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है. नेक्स्ट इज preposition. Now generally the preposition will shows the connection between words or sentences. Shows connection or relation between words. Okay, now I'll tell you one example. Sita went to market. So can you tell me the preposition over here? Sita went to market. To, very good. To is a preposition. क्योंकि to क्या बता रहा है? Went to market. उसका relation बता रहा है वो market जा रही है. तो to is a joining word. Okay. Next आता है conjunction. The word which joins two sentences. Here I have read an example. Preposition के in, on, about, etc. Join two sentences or words. For example, I'll tell you the example. Okay. Sita and Geeta went to market. Sita and Geeta went to market. Okay. Sita and Geeta went to market. And, very good. Not to. It's and. And क्या कर रहा है? And word join कर रहा है सीता और गीता को. जो word किसी दो word को या sentence को join करता है, that word is called as a conjunction. Okay, very good. Now next आता है last one, very easy, interjection. Now these words are generally used to show feelings. Here example मैंने नहीं लिखा. Example है and, so, or etc. Okay? यह interjection में आता है. Oh, how beautiful you are. Okay? तो interjection में एकदम easy है, exclamatory mark करता है. So this word is an interjection. Okay? Have you understood? Hooray, very good. Can you give me examples, more examples of exclamatory interjection के कोई words बता सकते हैं? Oh, very good. Bravo, very good. Anything else? Hooray, oops, very good. Okay? Have you understood? ये हो गया इंग्लिश में. अभी पढ़ते हैं मराठी में. मराठी में क्रिया विशेषण अव्यय. जैसे विशेषण क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, दैट इज क्रिया विशेषण. I'll write down one sentence. सीता हळूहळू चालते. सीता हळूहळू चालते. ओके, तो वेयर इज द क्रिया विशेषण हुआ ये? आदिति, पीयूष, अलास, वेरी गुड पीयूष. ओके, सीता हळूहळू चालते. तो विशेषण काय आहे? चालते क्रिया है. ती कशी चालते? हळूहळू चालते. वो कैसे चल रही है? स्लोली स्लोली चल रही है. मतलब उसका चलने का एक्शन, उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड, दैट इज ए एडवर्ब और इट इज अ क्रिया विशेषण होता है. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द शब्द योगी अव्यय. शब्द योगी मींस preposition. सीता झाडामागे लपली. इसको याद रखने का कीवर्ड, शब्द मीन्स व्हाट? नाउन. कोई वर्ड को ज्वाइन होके वो वर्ड आता है शब्द योगी अव्यय. वो अव्यय किसी वर्ड के साथ ही होता है. तो सीता झाडामागे लपली, तो यहाँ किधर है शब्द योगी अव्यय? कृपा, वेरी गुड. और
नॉट झाडा मागे, झाड वर्ड है, मागे शब्द योग्य होते हैं, किसी वर्ड के साथ आता है. सीता झाडा मागे लपली. अजून एक एग्जांपल देते. बॉल और चेंडू उंचावरून पडला. चेंडू उंचावरून पडला. शब्द योग्य हो गए. वरुण. वेरी गुड. हैव यू अंडरस्टूड? ओके. अभी इसमें ही हम लोग ने एडवर्ब देखा, प्रीपोजिशन देखा, कंजंक्शन बाद में देखते हैं, इंटरजेक्शन भी बाद में देखते हैं. ये दो हो गया. हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है कंजंक्शन. जॉइन कर रहा है. सीता झाडामागे लपली आणि तिने पुस्तक लपवले. सीता झाडामागे लपली आणि तिने पुस्तक लपवले. तो कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है. सो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? आनी. वेरी गुड वर्षा, ग्रीष्मा, आनी. ओके. हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट होता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन तो इजी है. शाबास, खूप चांगले काम केलेस. शाबास, खूप चांगले काम केलेस. कुठे विस्मयादी बोधक वगैरे, सॉरी केवल प्रयोगी वगैरे मराठी. शाबास, वेरी गुड. तनिष्का, मीनाक्षी, वेरी गुड. शाबास. ओके. ये हो गया. हिंदी का मैं तुम लोगों को वर्ड देती हूँ, सेंटेंस देती हूँ. लेट्स सी तुम लोगों को आता है क्या. सीता ने जल्दबाजी से खाना खाया और वह बस्ता उठाकर पाठशाला गई. ओके. तो इसमें तुम लोग को क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है, समुच्चय बोधक का अव्यय है और विस्मयादि बोधक नहीं है. तुम लोग को क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय मिलेगा ये सेंटेंस में. फाइंड आउट करो. ओके. अभी पहले वाला सेंटेंस है, सीता ने जल्दबाजी से खाना खाया और वह बस्ता उठाकर पाठशाला गई. तो ये सेंटेंस में क्रिया विशेषण अव्यय किधर है? कहाँ है क्रिया विशेषण अव्यय? वेर इज अ क्रिया विशेषण अव्यय? जल्दबाजी से. वेरी गुड. ये क्रिया विशेषण है. बराबर. नेक्स्ट क्या है? समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक मीन्स कंजंक्शन. यहाँ कंजंक्शन कहाँ है? और. वेरी गुड. कंजंक्शन, समुच्चय बोधक. ओके. अभी रह गया नेक्स्ट संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक. ये दो सेंटेंस में है. यहाँ संबंध सूचक कहाँ है?
याद रखने का, संबंध सूचक के डैश वाला वर्ड आता है, जनरली क्या ही लिखती हूँ, वर्ड आफ्टर के बाद वाला वर्ड जनरली समुच्चय बोधक होता है। तो इसमें क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, यस वेरी गुड, ये के बाद वाला वर्ड समुच्चय बोधक। ओके, हैव यू अंडरस्टूड। इधर विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय कहाँ आ रहा है, एकदम इजी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ है, उफ, वेरी गुड, दिस इज विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी तुम लोग आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उनके स्पेलिंग्स भी तुम लोग ठीक से आना चाहिए। जैसे विस्मयादि बोधक है, स्पेलिंग कभी कभी रॉन्ग हो गया तो भी आपको मार्क्स जा सकता है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड। तो मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, वो सेंटेंस में तुम लोग को जो मिल रहा है वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ऐसे करती हूँ, मैं अंडरलाइन करती हूँ, तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है वो क्या है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, नाउ आइडेंटिफाई दी अंडरलाइन वर्ड्स। पहले सेंटेंस आता है, राम ने कल से खाना नहीं खाया। तो इसमें कल क्या है, कल क्या है, राम ने कल से खाना नहीं खाया, इसमें कल क्या है, उसने खाना कब से नहीं खाया है, क्या हो जाएगा कल, क्रिया विशेषण अव्यय, वेरी गुड। ओके, क्रिया विशेषण अव्यय, उसने खाना कल से नहीं खाया तो क्रिया विशेषण अव्यय, वेरी गुड। खाया क्या आएगा, खाया, खाया क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक। बराबर, हिंदी में बताओ खाया क्या आएगा, हिंदी का बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी। क्रिया, वेरी गुड स्वालिया, वेरी गुड, क्रिया। ओके, यहाँ टीचर ने बच्चों को लाल गुलाब दिया, तो बच्चों को क्या आएगा, हिंदी में बताना है, बच्चों को क्या आएगा, हरी अप, बच्चों को क्या आएगा, बच्चों को हरी अप, संज्ञा, वेरी गुड स्वालिया, वेरी गुड, संज्ञा। लाल क्या आएगा, लाल, गुलाब को डिस्क्राइब कर रहा है तो लाल क्या आएगा, लाल क्या आएगा, विशेषण, वेरी गुड।
नेक्स्ट हम जाना चाहते थे लेकिन बारिश आई। लेकिन क्या आएगा? लेकिन क्या आएगा? देखो जरा, लेकिन क्या आएगा? हिंदी में चाहिए दिव्या, आरती, हिंदी। नहीं, संज्ञा नहीं। हर्षिता, लेकिन वर्ड क्या आएगा? लेकिन, लेकिन वर्ड ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंस को। ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध सूचक अव्यय। वेरी गुड सोनिया, इट्स अ संबंध सूचक, सॉरी समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक नहीं, समुच्चय बोधक अव्यय। ओके नेक्स्ट, नदी के किनारे घना जंगल था। जंगल है तो किनारे क्या है? किनारे क्या है? हिंदी चाहिए शेख, हिंदी चाहिए। संबंध व्हाट? ग्रीष्मा, यस इट्स संबंध सूचक अव्यय। ओके हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी यही मराठी में आएगा तो ओरली पूछूं, फटाफट सेंटेंस के आंसर्स दे देंगे। सीताने कालपासून जेवण बनवले नाही। कालपासून, कालपासून काय? सीताने कालपासून जेवण बनवले नाही। तर कालपासून काय आहे? काय येणार याच्यातलं? क्रिया विशेषण, शब्दयोगी, उभयान्वयी की केवळ प्रयोगी अव्यय? काय येणार? सीताने कालपासून जेवण बनवले नाही। काय येणार कालपासून? विचार करा। क्रिया विशेषण अव्यय, वेरी गुड। कड़ा मैं तो वो बता रहा है कि उसने कब से खाना नहीं खाया, कल से खाना नहीं खाया। नेक्स्ट, मी उद्या बाजारात जाणार आहे आणि खूप खेळणी विकत घेणार आहे। तर खूप काय आहे? मी उद्या बाजारात जाणार आहे आणि खूप खेळणी विकत घेणार आहे। तो खूप काय आहे? खूप काय? खूप मराठी खूप विशेषण आहे, वेरी गुड। ओके आणि काय? आणि काय? लोक सांगा पटापट। मराठीत हवंय, मराठीत हवंय, मराठीत। आणि म्हणजे काय? मराठीत मराठी इकडे या, इकडे सगळे इकडे। इधर है आप लोग, सब लोग इधर घूम रहे अब तक, इधर आ जाओ। मराठी में क्या है? आणि, द वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। आणि शब्दयोगी अव्यय, बरोबर आहे? बरोबर आहे, शब्दयोगी अव्यय। आणि ग्रीष्मा, शब्दयोगी अव्यय नहीं है, उभयान्वयी अव्यय। वेरी गुड दिव्या, कृपा, स्वालिया। ओके हैव यू अंडरस्टूड? तो बेसिक तुम लोगों को समझ में आया। कंपैरेटिव स्टडी ये तो हम लोग को इंग्लिश में आता है, लेकिन जब इनको हिंदी में और मराठी में आता है ना, तो समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, शब्दयोगी अव्यय, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ओके सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। यस, नो? वर्षा, have you understood everything today? Okay now see, मैंने एक सोचा है कि आई एम गोइंग टू टेक वन सेशन। एक मैं सेशन लेने वाली हूँ 10 डेज का, जिसमें बेसिक्स ऑफ ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगी
और कौन से करूंगी और मैं पहले लिखती हूँ इंग्लिश में. ओके. 10 days के सेशन में, सेशन विल बी फॉर 10 days. One hour daily. Okay. Out of this 8 days का टीचिंग रहेगा, 1 day revision and 1 day will be test. ओके. सो मैंने पहले भी एक ग्रामर का सेशन लिया था और वो ग्रामर का सेशन में व्हाट आई हैव डन कि मैंने ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, 15 डेज का सेशन था और उसमें ग्रामर के कुछ टॉपिक्स रिवाइज किए थे. अभी बहुत जन बाद में उसमें एंटर हो गए और अभी मुझे टाइम नहीं था, सो आई हैव नॉट टेकन दी अनदर सेशंस. तो जो जितने छुट्टी में हुए थे उतने ग्रामर के सेशन हुए. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेक वन मोर सेशन. ग्रामर के 5 टॉपिक्स उसमें मैं कवर करूंगी, दैट इज वॉइस, डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, affirmative negative, and one more topic that is add a question. Okay, so these 5 topics I am going to take. Okay, these 5 topics I am going to take for this 10 day session, जिसमें तुम लोग को 8 days का टीचिंग होगा, then 1 day का रिविजन, 1 day का टेस्ट. along with this I'll give notes. और इसके साथ एक गुड न्यूज है. Okay, now my course will start from 10th August. Okay, and admissions will start from today itself. So I'll say from 2nd to 7th August. 2nd से 7th August तक अगर आप लोग ने एडमिशन लिया और एडमिशन कंफर्म किया, then you'll have 2 days का राइटिंग स्किल सेशन एब्सोल्युटली फ्री. ये 2 दिन का एक्स्ट्रा सेशन है राइटिंग स्किल का, इंग्लिश का, वो मैं फ्री में लेने वाली हूँ जिन्होंने एडमिशन 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में किया. अलॉन्ग विद दिस जिन्होंने मेरा पहला ग्रामर का सेशन अटेंड किया है उनके लिए भी ये सेशन फ्री है. ओके, एंड दिस इज, ये सेशन मैंने पहले लिया था, जिन्होंने किया उनको मालूम है. आई हैव टेकन 500 rupees for this, but for this topic I am giving you an offer of rupees 199. So these 5 topics I am going to cover in for 199. So if you are interested, मैंने लिंक नीचे दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस आपको पे करना है बाय गूगल पे का नंबर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा. इवन इट इज ऑलरेडी गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो होप you have understood the today's session. Time to time we'll take different sessions on this, so stay connected and thanks for watching my video.